So hello guys, welcome back to my channel. I am Cat Path Mehta, fourth year India Mehta यूनिवर्सिटी कोलकाता कैंपस। एंड अगर अभी आप लोग IMUCT के लिए अपीयर हो रहे हैं और अंडर 1000 रैंक स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। बट गाइस द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ यू डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द IMUCT. What are the strategies? What are the tips and tricks? Because IMUCT, JEE Mains and each and every exam are different, and the strategies and tips and tricks for preparing for each and every exam is little bit different. So don't worry guys, in this video we will be covering about best preparation strategies, subject wise tips and tricks and smart techniques to crack IMUCT. And guys, make sure you are watching this video till the end, because after watching this video you are having a clear idea about how to go ahead with each and every subject and which topic should be more focused and which topic should be less focused. And if you are following each and every tips that I am sharing in this video, you will definitely get under 1000 rank. So guys, बिना time waste किए let's get started. So guys, first of all let's discuss what is the meaning of getting under 1000 rank in IMUCT and why it is very important. If you're getting under 1000 rank in this IMUCT exam, you can choose your dream college, and in that college you can choose your stream that you are desiring to get admission. And this thing is possible अगर आप लोग dedicated हो, अगर आप लोग focused हो, and if you are following right strategies and right tips and tricks in each and every subject while preparing for it, then this is not a very tough job. So guys, before going ahead with the preparation strategies, first of all let us discuss about the paper pattern. Keep this in mind that it should be computer based exam. You will be having 3 hours of time, and the subjects are English, which is carrying 40 marks, general knowledge and aptitude, which is again carrying 40 marks, chemistry, which is carrying 20 marks, and physics and mathematics, both carrying 50 marks each. And you will get plus 1 marks for each right answer, and 0.25 marks will be deducted if you are having a wrong answer. So guys, first of all let's discuss about the maths, just because it is one of the very important subject in IMUCT. So first of all guys, 11th and 12th की NCERT से स्टार्ट करो. तुम्हारे 11th और 12th के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सब स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. स्पेशली जो फॉर्मूलाज हैं वो सब तुम्हें एकदम अच्छे से याद होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोग एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और तुम्हें फॉर्मूला स्किप हो गया. ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. NCERT के अंदर जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उन सबको अच्छे से सॉल्व, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सबको देखो कि कैसे उसको सॉल्व किया गया है. हर एक क्वेश्चन को NCERT के अच्छे से सॉल्व करो. इफ़ यू आर हैविंग NCERT डन, देन गो अहेड विद RD शर्मा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ RD शर्मा ऑब्जेक्टिव. मैथ्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि मैथ्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. तुम लोगों को रोज़ मैथ्स को एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स देना ही है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है और इतना टाइम तो तुम्हें एटलीस्ट देना ही पड़ेगा मैथ्स के लिए. जो है अपनी स्पीड और एक्यूरेसी, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करो. ऐसा नहीं होता कि तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी में गड़बड़ है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है उसमें, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो थोड़ा सा बेसिक होती हैं, उतना ज़्यादा टफ नहीं आता. बट तुम्हारी जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो सही होती है, क्योंकि यू विल बी हैविंग नेगेटिव मार्किंग इन दिस क्वेश्चन पेपर. अगर आप लोग कुछ भी गलत कर दोगे तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा. और अगर आप लोग श्योर नहीं हो किसी चीज़ पे, फॉर एग्जाम्पल इन अ क्वेश्चन you are 50% sure, then don't attempt that question. If you are having surety of 70% or more than 70%, then only you have to attempt that question. And guys, मैथ्स से प्रिपरेशन करते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप लोग स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई आप एक सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सेट्स और रिलेशंस एंड फंक्शंस, आप ऐसा कुछ पढ़ रहे हो, तो उसके साथ साथ एक नोटबुक बनाओ अलग से अपनी. उस नोटबुक के अंदर उस चैप्टर का नाम डालो, और जितने भी आप फॉर्मूलाज आपको मिल रहे हैं उसमें तो सब फॉर्मूलाज लिख दो. जितने फॉर्मूला लिखे, अब आप एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको उसके अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज मिलेंगे. उन फॉर्मूलाज को भी जो अपनी नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर लो. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और जब आप लोगों का एग्जाम नज़दीक आ गया होगा बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको नोटबुक उठानी है और उन फॉर्मूला से एक बार गो थ्रू होना है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि आप लोगों को आता है वो क्वेश्चन, बट वो फॉर्मूला क्लिक नहीं हो रहा, उसके कारण जो है पूरा पेपर ख़राब हो जाता है. तो ये गलती ना हो, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा मेक श्योर करो. एंड गाइस, मॉक टेस्ट जो है ज़रूर देते रहो. अपना जो टाइम है वो नोट करो कि आप लोग पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस कितने टाइम में अटेम्प्ट कर ले रहे हो, क्योंकि स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अलॉन्ग विद इट एक्यूरेसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू बैलेंस बोथ ऑफ दीज थिंग्स. एंड इफ यू आर डिजायरिंग टू गेट अंडर 1000 रैंक, देन यू विल बी हैविंग a right speed and right accuracy. So guys, let's now discuss physics, just because physics is also very important subject. It is also getting 50 marks in IMUCT. तो फिजिक्स में मैं सिर्फ इतने बोलूँगा कि सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करो. NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल्स जितने भी हैं सब करो.
आप जो है थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए एच.सी. वर्मा भी यूज़ कर सकते हो। एच.सी. वर्मा के अंदर जितनी भी थ्योरी है उसको रीड आउट करो। उससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना माइंड में वो स्ट्रॉन्ग होगा। मे बी कुछ क्वेश्चन जो है कुछ भी घुमा फिरा के आ सकता है, आपको जो है क्वेश्चंस की वर्डिंग के अंदर उलझाया जा सकता है कि वर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं क्वेश्चन की, बट मे बी द क्वेश्चन इज मच सिंपलर। And if you're having a very good clarity of basic concept, then this thing is just a minute task for you. Guys, जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं IMCT में वो जनरली जो है फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। सो मेक श्योर यू आर हैविंग अ गुड क्लैरिटी इन फॉर्मूलाज। इसमें भी आप सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि इफ यू आर स्टडिंग अ सब्जेक्ट, मेक अ नोटबुक एंड राइट द नेम ऑफ द चैप्टर एंड along with it write each and every formula of that chapter and keep the book of each subject separate, like this is for physics, this is for mathematics, this is for chemistry. Keep all these books separate and just a day before exam go through these books. ये फॉर्मूला याद करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे तो कोई चांस नहीं है कि आप लोग फॉर्मूला भूल सकते हो। गाइस, ऑल्सो यू कैन यूज ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय DC पांडे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर फिजिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स इकट्ठे मिला के 100 मार्क्स कंप्लीट करते हैं। अगर आपकी मैथमेटिक्स और फिजिक्स गई तो आपकी कभी भी अंडर 1000 रैंक तो नहीं आ पाएगी। नाउ लेट्स मूव अहेड टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स है, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। 20 मार्क्स भी हैं, उनमें भी कुछ बेसिक क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो अगेन मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए आप NCERT पढ़ो। बाकी कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इन सब के जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके एकदम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इन सब टॉपिक से ही जनरली क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, और सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आई एम श्योर आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग उनको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इंग्लिश। जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है IMCT का, तो इंग्लिश को तो अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दो। इंग्लिश के अंदर कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं लाइक सिनोनिम, एंटोनिम्स, जंबल वर्ड्स, वोकैबुलरी, आइडम्स एंड सम ग्रामर क्वेश्चंस। और ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं दे आर वेरी वेरी सिंपल, यू कैन अटेम्प्ट इट वेरी इजीली। Still, you can make an habit of reading newspaper or novels, something like that, to build your vocabulary. So guys, let's move ahead and talk about general aptitude and general knowledge. Both of them have combined weightage of 40 marks and they are also very easy subjects to score. तो इन सब्जेक्ट्स में तो मार्क्स बिल्कुल भी मत वेस्ट करना, अपने ट्राई करना ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें तुम लोग बेस्ट स्कोर करो। जनरल एप्टीट्यूड सॉल्व करने के लिए तुम लोग RS अग्रवाल की बुक यूज़ कर सकते हो, उसमें एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग अटेम्प्ट करो। बाकी इंटरनेट पे भी आपको कई सारे लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो, दैट इज मोर देन इनफ। और जनरल नॉलेज में जनरली जो है करंट अफेयर्स आते हैं और मैरीटाइम इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी करंट टॉपिक्स है ना वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके साथ आप लोग इंडिया बिक्स नाम से एक वेबसाइट है, आप उसको यूज़ कर सकते हो अपनी जनरल नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। बाकी मैंने आपको एक प्रीवियसली टिप्स दी थी न्यूज़पेपर रीड करने की, आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो ताकि आप लोगों को कुछ करंट अफेयर्स मेन पता रहें, और मैरीटाइम इंडस्ट्री रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आप उनको इंटरनेट पे रीड कर सकते हो। सो गाइज, ऑल दीज थिंग्स दैट आई हैव शेयर्ड आर द सब्जेक्ट वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ओवरऑल स्ट्रेटेजी दैट यू हैव टू बिल्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस IMCT एग्जाम। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल IMCT की प्रिपरेशन करते हुए मॉक टेस्ट पे फोकस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से कई सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए, तो ये एक एडवांटेजियस पॉइंट होता है। उसके बाद आप लोग मिस्टेक एनालिसिस करो। टू डू दैट यू हैव टू टेक अ सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड पुट अ टाइमर, और आप लोग नोट करो कि आप वो सेट ऑफ क्वेश्चंस कितने टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हो और आपकी एक्यूरेसी क्या है। अगर आप लोगों ने वो सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद उसके जितने भी आपके रॉन्ग क्वेश्चंस आए उन सबको एनालाइज करो। मोस्ट ऑफ द केस में सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल कोई मॉक टेस्ट या फिर कुछ भी सेट ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, आप लोगों ने वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया बट आप लोग उसका एनालिसिस नहीं करते, जो सबसे मेन चीज़ है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जितना टाइम उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में लगाया उतना ही टाइम लगाओ उसका एनालिसिस करने में। अगर आप उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करोगे तो अगली बार उस टाइप का क्वेश्चन आप किसी और पेपर में आपको मिलेगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड सेकेंडली, वन मोर थिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक रिलायबल सोर्स नहीं चूज कर पाते। वो लोग क्या करते हैं 10 चीज़ों से पढ़ते हैं बट समझ किसी से भी नहीं आता। अब 1 और 2 सोर्सेज को पकड़ो और उस पर ही फोकस करो, आप उसको जितना पढ़ोगे उतना ही आपका डेवलपमेंट होगा। सो गाइस, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट IMCT एग्जाम। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आप लोगों ने पूरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लिया, प्रिपरेशन आपकी 100% है, बट आपको अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा एग्जाम को, आप कैसे अटेम्प्ट करें। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मैं आपके शेयर कर रहा हूँ, आप इन सब चीज़ों को अगर फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुँचो। टाइम पे पहुँचने से क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप उस एनवायरनमेंट में काम डाउन हो जाओगे। सेकेंडली, एग्जाम से पहले प्रॉपर स्लीप लो। अगर आपकी स्लीप नहीं होगी प्रॉपर तो एग्जाम पूरा खराब हो जाएगा, इस चीज़ के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। एंड गाइस, अलॉन्ग विद इट, आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो।
ईजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन टफ है तो उसके ऊपर ऐसा नहीं है पूरा टाइम उसको लेके बैठ जाओ, उस पर ही अपना जो 3 आवर्स का टाइम है उस पर ही बर्बाद कर दो, उसको रिव्यू पे डाल दो और बाद में उसको एनकाउंटर करो। ऐसा होना चाहिए कि आप सब क्वेश्चन से गो थ्रू हो गए, स्टिल आपके पास जो कुछ हार्ड क्वेश्चन है लास्ट में बचे हुए हैं, आप उन क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो। बट ईजी क्वेश्चन जितने भी हैं क्वेश्चन पेपर में, ट्राई करो विद इन दिस 3 आवर्स वो ईजी क्वेश्चन सब के सब अटेम्प्ट हो जाए। एंड गाइज अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाना बिल्कुल मत भूलना एग्जाम सेंटर पे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड गाइज अगेन आई एम टेलिंग, पूरे पेपर के दौरान अपने नेगेटिव मार्किंग का प्रॉपर ध्यान रखो। श्योरिटी है आपको उस क्वेश्चन में तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ऐसे बिना श्योरिटी के उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो। अगेन आई एम टेलिंग, आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, उसके बाद आपके जो मार्क्स हैं डिडक्ट होते रहेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपने सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, सब सही हैं, बट एट द एंड मार्क्स बहुत लो आएगा और आपकी रैंक पूरी डाउन चली जाएगी। एंड गाइस दीज आर सम प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज फॉर IMU CET एग्जाम। और अंडर 1000 रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप लोग कुछ चीज़ों को फॉलो अप करोगे तो इट इज़ नॉट अ वेरी टफ जॉब। एंड गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। This small gesture of yours motivates me a lot to work hard for you guys and make more and more videos for you. अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको किस और नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए। I will try to make video on that topic as well. Until then, goodbye and best of luck for your exams.